Our next topic is developing business writing techniques. So, after looking at the three common sentence faults, now the next step is developing business writing techniques. Business writers can significantly or can improve their message by adopting or by working on few writing techniques. जो बिजनेस राइटर्स हैं या जो बिजनेस मैसेज लिखने वाले हैं, दे कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स, दे कैन इम्प्रूव देयर मैसेज बाय वर्किंग ऑन और बाय अडॉप्टिंग फ्यू राइटिंग स्किल्स. अगर वो चंद ये राइटिंग स्किल्स को जो है वो स्किल्स और राइटिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लें तो इट मीन्स दे कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग स्टाइल, दे कैन इम्प्रूव और दे कैन इम्प्रूव देयर मैसेज. वो कौन सी? यूजुअली वी हैव द 4 राइटिंग टेक्निक्स. वो 4 राइटिंग टेक्निक्स हैं. बाय वर्किंग ऑन दीज 4 राइटिंग टेक्निक्स any business writer can improve their message. Number 1, developing emphasis. Second is using active and passive voice. Third technique is developing parallelism. And fourth one is escaping dangling and misplaced modifiers. You have already familiar the last 2 things, parallelism and escaping dangling modifiers and misplaced modifiers. So we will explain, or I will discuss all 4 techniques one by one with you. So the first one is developing emphasis. Emphasis means जोर देना. When you are talking with someone, जब आप किसी से verbally communicate कर रहे होते हैं या जब किसी से oral presentation कर रहे होते हैं, when you are talking with someone, then you can emphasize what you are going to tell them, or you can emphasize your main idea by saying them loudly, by using your tone, by using your face expression, by using your tone, or by making your sentences loud, or by repeating them slowly. You can also give an emphasis. You can also give emphasis on your main idea using your body gesture, using your facial expression, using your all these things. So you for example, if I say that you can give an emphasis on what you are saying. आप जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर आप उसको orally और verbally कह रहे हैं तो आपके लिए emphasis करना आसान होता है, जोर देना उस बात पर आसान होता है. वो इस तरह से कि यू कैन यूज़ योर फेस एक्सप्रेशन में यू कैन अपलिफ्ट योर आईब्रोज, यू कैन आप अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को ऊंचा नीचा करके जो है उस तरह से भी यू कैन गिव एम्फेसिस. यू कैन ऑल्सो शेक योर हेड, यू कैन ऑल्सो यूज़ योर हैंड्स टू एम्फेसाइज your idea. So it means that you can it's easy for you when you communicate with the people, when you talk with the someone, then it's easy for you to give an emphasis on your main idea, on what you are saying, by using your body gesture, by using your facial expression. But in writing, लेकिन जब आप लिखने की बात करते हैं, when you write, you must rely on other techniques. आपको दूसरी टेक्निक्स पे रिलाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू शो द एम्फेसिस इन योर राइटिंग, इन ऑर्डर टू गिव not only the emphasis, or in order to tell the reader or your audience that which ideas are more important than others. लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप जो है वो आप अपने वर्ड्स के थ्रू या फिर वो आप कुछ टेक्निक यूज़ करके जो है वो अपने ऑडियंस को या अपने रीडर को जो है वो ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन से आइडियाज़ आपकी राइटिंग में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. अब वो कौन सी टेक्निक है? हम ये बात करें एम्फेसिस की बात करें, डेवलपिंग एम्फेसिस. राइटिंग में जब आपने एम्फेसिस को डेवलप करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग. अगर हम जो है वो टॉकिंग की बात करें, टॉकिंग विद समवन, तो ईजी होता है उसमें एम्फेसिस करना. लेकिन अगर आप राइटिंग की बात करें तो उसमें यू नीड टू रिलाई ऑन टेक्निक्स in order to tell your reader that which ideas in your writing are more important as compared to others. अब उसमें वो क्या चीज़ें? emphasize in writing can be achieved primarily in 2 ways. अगर राइटिंग में आप जो एम्फेसिस की बात करें तो उसको 2 तरीक़ों से जो है वो आप अचीव कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ मैकेनिकली, नंबर 2 इज़ स्टाइलिस्टिकली. या तो मैकेनिकली आप चीज़ों को यूजिंग मैकेनिक्स आप जो अपनी राइटिंग में जो है बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट आइडिया डिस्कस कर रहे हैं आप अपनी राइटिंग में, और कहाँ कहाँ पे जो है यू वांट टू गिव एन एम्फेसिस इन योर राइटिंग. यू कैन शो इट थ्रू मैकेनिकली एंड यू कैन शो इट स्टाइलिस्टिकली. यानी कि इन योर राइटिंग द एम्फेसिस कैन बी अचीव्ड प्राइमरीली इन 2 ways, मैकेनिकली एंड स्टाइलिस्टिकली. अब मैकेनिकली की बात करते हैं. अचीविंग एम्फेसिस थ्रू मैकेनिक्स. अगर हम ये बात करें कि आप मैकेनिक्स के ज़रिए किस तरह से जो है वो एम्फेसाइज दे सकते हैं टू एम्फेसिस इन अ प्रिंट फॉर्म और इन थ्रू मैकेनिक्स, you can use underline words, you can underline your writing, you can underline the words, you can use italics, boldface, you can also
फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप लिखते लिखते आप उसको जो है इटैलिक में ले जाएं या बोल्ड कर दें, तो इट मीन्स दैट ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, एंड यू वांट टू मेक दिस थिंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर रीडर, एंड यू वांट टू मेक इट आई कैचिंग फॉर योर ऑडियंस और योर रीडर। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक एंड बोल्ड फेज यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ ऑल कैप्स, यू कैन यूज़ डैशेस एंड यू कैन यूज़ टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है जी? टैबुलेशन मीन्स दैट कि इसमें जो है वो आप आइटम्स को जो है वो वर्टिकली जो है वो लिख सकते हैं, दैट इज सेड टू बी अ टैबुलेशन। तो ये था जी अचीविंग एम्फेसिस थ्रू मैकेनिक्स। मैकेनिकली आप किस तरह से एम्फेसिस अपनी राइटिंग में चूज जो है वो अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज मैकेनिकल टेक्निक्स। और स्टाइलिस्टिकली की अगर बात करें तो स्टाइलिस्टिकली जो है अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो मेजर टॉपिक था उसमें हमने जो है वो ये देखना था अभी जो है डेवलपिंग बिजनेस राइटिंग टेक्निक कैसे करनी है। उसमें हमने 4 टेक्निक्स पढ़नी है। पहली टेक्निक हम पढ़ रहे हैं जी डेवलपिंग एम्फेसिस। उसमें हम देख रहे हैं कि राइटिंग में एम्फेसिस करने के 2 तरीके हैं, मैकेनिकली और स्टाइलिस्टिकली। मैकेनिकली भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मैकेनिकली आप किस तरह से एम्फेसिस दे सकते हैं, कर सकते हैं अपनी राइटिंग में इन चीज़ों को यूज़ करके। नाउ अचीविंग थ्रू स्टाइलिस्टिकली, अगर आप अपनी राइटिंग में इफ़ यू वांट टू अचीव एम्फेसिस इन योर राइटिंग थ्रू स्टाइलिस्टिकली, देन हाउ कैन यू अचीव इट? तो आप वो कैसे अचीव कर सकते हैं? इसमें दैट इज़ द राइटर चूजेज वर्ड्स केयरफुली। इसमें ये होता है कि राइटर जो अपने अल्फाज को बड़े तरीके से जो है और बड़े उनको आराम से एहतियात से उनको चूज़ करता है और देन कंस्ट्रक्ट करता है। सेंटेंसेस, द राइटर हैंडल सेंटेंसेस वेरी स्किलफुली टू एम्फेसिस द मेन आइडिया एंड डी एम्फेसिस द माइनर और नेगेटिव आइडियाज़। हाउएवर इसमें भी आगे जो है वो 4 सजेशंस जो यूजुअली दी जाती हैं कि अगर आपने स्टाइलिस्टिकली जो है वो एम्फेसिस जो है वो गेन करना है या अचीव करना है, तो वो स्टाइल के ज़रिए आप 4 तरीके से जो है वो किस तरह से जो है वो आप अचीव कर सकते हैं अपनी राइटिंग में जो है वो एम्फेसिस को। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो है राइटर जो होता है वो ऑलरेडी बहुत केयरफुल होता है अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स के बारे में, और उसमें जो है वो एम्फेसिस जो देने के लिए मेन आइडिया को जो है वो बड़े यूज़ करता है सेंटेंसेस को स्किलफुली टू एम्फेसाइज द मेन आइडिया एंड डी एम्फेसाइजेज द माइनर और नेगेटिव आइडियाज़। अब आगे से वो 4 टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप स्टाइलिस्टिकली जो है वो एम्फेसिस जो है वो अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं। नंबर 1, यूज़ विविड नॉट जर्नल वर्ड्स। आपने विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर वर्ड्स आपने यूज़ करने, जर्नल वर्ड्स यूज़ नहीं करने। यूज़ विविड नॉट जर्नल वर्ड्स। नंबर 2, लेबल द मेन आइडिया। नंबर 3, प्लेस द इम्पॉर्टेंट आइडिया इन फर्स्ट और एट लास्ट। या तो आप अपने इंपॉर्टेंट आइडिया को फर्स्ट पे ले जाएं या फिर सबसे लास्ट पे लें। और थर्ड, द लास्ट वन और फोर्थ वन इज़ दैट गिव द इम्पॉर्टेंट आइडिया टू द स्पॉटलाइट, कि जो इंपॉर्टेंट आइडिया उसको आप स्पॉटलाइट में जो है वो रखें। सो दीज आर द 4 टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन in a stylistically if you want to give emphasis in your writing stylistically, then you have to focus on these 4 things. Use vivid words, not journal words. Label the main idea, place the important idea in the first or at the last, and the fourth one is give the important idea the spotlight. अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको एक एक मैं एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दूँ कि यूज़, जब हम ये कहते हैं कि you need to use the vivid not journal words, so it means that vivid words give more emphasis. Vivid means clear words. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्जाम्पल है जर्नल में, अगर आप इसको लिखेंगे द वे वी सीक जॉब्स हैज़ चेंज्ड, दिस इज़ अ जर्नल, दिस चॉइस ऑफ द वर्ड्स इज़ जर्नल, लेकिन हमने इसकी जगह विविड वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे द इंटरनेट हैज़ ड्रामेटिकली चेंज्ड हाउ जॉब हंटर्स सर्च फॉर पोजिशंस, सो दिस इज़ अ विविड। सो एंड द नेक्स्ट इज लेबल द मेन आइडिया। अब लेबल द मेन आइडिया कैसे है? अगर अनलेबल्ड स्टेटमेंट इस तरह से हो सकती है, consider looking for a job online but also focus on networking। ठीक है जी। अब लेबल्ड आपने अगर इसको करना है तो आप इसको इटैलिक में लिख लें, कंसिडर लुकिंग फॉर अ जॉब ऑनलाइन, उसके बाद यू विल यूज सेमीकोलन, बट उसके बाद आप वही कोऑर्डिनेटिंग यानी कि यू आर ज्वाइनिंग द 2 इंडिपेंडेंट क्लॉसेज विद यूजिंग कंजंक्शंस, तो फिर आप कहाँ क्या यूज़ करेंगे? आप वहाँ पर यूज़ करेंगे सेमीकोलन, और उसके बाद आप बट यूज़ करके कॉमा यूज़ करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस ऑन नेटवर्किंग। प्लेस द इम्पॉर्टेंट आइडिया फर्स्ट और लास्ट। थर्ड वन था जी, आप अपने आइडिया को या तो बिगनिंग में ले आएँ या फिर लास्ट में ले आएँ। तो इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स आर मोर इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी व्हेन दे आर लिंक्ड टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रादर देन टू ग्रुप परफॉर्मेंस। जी, तो ये है एक मेन आइडिया। इसमें कोई मेन आइडिया की समझ नहीं आ रही कि आप
आपका फोकस किस चीज़ पे, प्रोडक्टिविटी पे है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स पे है। तो अगर आप इसको यूँ शेयर करेंगे, प्रोडक्टिविटी इज़ मोर लाइकली टू बी इंक्रीज व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स आर लिंक्ड टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रादर देन टू ग्रुप परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो क्लियर हो गया कि आप बात किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज दैट गिव द इम्पॉर्टेंट आइडिया द स्पॉटलाइट। जो इम्पॉर्टेंट आइडिया है उसको आपने स्पॉटलाइट में लेकर आना है। उसमें जो है वो मेन आइडिया जो है उसमें भी एक एग्जांपल आपको दी हुई है। वो एग्जांपल जो है, ऑल्दो यू आर द फर्स्ट trainee we have hired for this program, we had many candidates and expect to expand the program in the future। the main idea जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में कहीं गुम हो गया, समझ नहीं आ रही कि क्या मेन आइडिया। तो इसमें जो है आप जब मेन आइडिया को जो है अपने इंपॉर्टेंट आइडिया को आप स्पॉटलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि यू आर द फर्स्ट वन, सो you will just write it like that, you are the first trainee we have hired for this program, simple sentence। so ये थी जी 4 stylistically techniques। If you want to give an emphasis in your writing through style, then you go for these 4 things. Use vivid words, not general words. Label the main idea. Place the important idea first or last and give the important idea to the spotlight। उसके बाद है जी डी एम्फोसाइज व्हेन द नेसेसरी। अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ देनी है या कोई बैड न्यूज़ देनी है तो आप उसको जो है डी एम्फोसाइज कर सकते हैं जहाँ पर जो है वो ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, आर records indicate that you were recently fired। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि आर records indicate that you were recently fired। तो ये एक बड़ी हार्ड सी स्टेटमेंट है, आप इसको डी एम्फोसाइज कर सकते हैं जी। वो किस तरह से, ये एक नेगेटिव जो है वो न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है, यू कैन डी एम्फोसाइज इट and better to write it like this, our records indicate that your employment status has recently changed। so this is the emphasis, how can we use the emphasis technique। here I am going to summarize the topic developing business writing techniques। मैं एक दफ़ा ज़रा उसको जो अभी हमने सिर्फ उसका एक पॉइंट डिस्कस किया है, that is developing emphasis। अभी इसके बाकी 3 टेक्निक जो हैं वो बाकी हैं, using active and passive voice, developing parallelism, escaping handling and misplaced modifiers। we will discuss the rest of the 3 points in the next lecture। today we in this topic we have just discussed that कि डेवलपिंग बिजनेस राइटिंग टेक्निक्स में आपके पास 4 टेक्निक्स होती हैं, डेवलपिंग एम्फेसिस, यूजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डेवलपिंग पैरेललिज्म, एस्केपिंग डैंडलिंग एंड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया डेवलपिंग एम्फेसिस, यानी कि इसमें यह है कि अगर आप राइटिंग में अपने राइटिंग में एम्फेसिस जो है वो देने के लिए, इन ऑर्डर टू शो एम्फेसाइज इन योर राइटिंग, देन यू यूजुअली यू रिलाई ऑन टेक्निक्स। आप 2 टेक्निक्स पे रिलाई करते हैं ताकि जो है आपके रीडर्स को जो है, इन ऑर्डर टू गिव दिस इंप्रेशन टू योर रीडर दैट विच थिंग इन योर राइटिंग और विच सेंटेंसेज इन योर राइटिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट, या विच आइडियाज़ इन योर राइटिंग और इन योर मैसेज शुड बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस। तो वो एम्फेसिस जो है यू कैन गिव जो है, यू कैन अचीव दिस एम्फेसिस इन योर राइटिंग in 2 ways। नंबर 1 मैकेनिकली, नंबर 2 स्टाइलिस्टिकली। मैकेनिकली जो है वो हमने देखा कि आप किस तरह से जो है वो अचीव कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मैकेनिकल टेक्निक्स, अंडरलाइनिंग, इटैलिक्स, बोल्ड प्लेसेस एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड स्टाइलिस्टिकली में जो है वो आगे फिर हमने 4 चीज़ें देखी कि स्टाइलिस्टिकली में जो है वो आप विविड जो है अपने आइडियाज़, अपने वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को बड़ा केयरफुली चूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो यूज़ विविड वर्ड्स, label the main idea, place the important idea for first or last, or give the important idea to the spot।